Hello students, I Sasibhushan Tiwari welcome you all on this channel. If you haven't subscribed till date, please do it now. You can also become a member of this channel by paying a small subscription fee, which will allow you to get few more videos as compared to general audience. Let us come to today's discussion. Today we are going to discuss a question which will help us understand a guidance system for an aircraft while it is landing at some airport where the visibility is poor. A design of a guidance system that can help the aircraft um, to rightly detect the runway and land on it safely. Uh, the basic principle involved is quite simple, which you all already know, though the actual system is really complex, but you will get the very much you will get the idea about the basic principle that is used in designing such systems. Here is today's question. uh, Safe landing, okay, that is very much required. Two antennas, two radio antennas S1 and S2 are placed symmetrically with respect to a runway at a separation of 50 meters. This is a runway, this is the central line, this is antenna S1, this is antenna S2. S1 and S2 both antenna can broadcast coherent radio waves with zero phase difference. These two antenna broadcast coherent waves with zero phase difference. Initial phase difference is zero. Both of them can broadcast wave of two different frequencies. Both the antenna can broadcast wave of two different frequencies, F1 and F2. They are used to guide an aircraft to safe landing when visibility is poor. The receiver on board the aircraft, जो receiver aircraft पे है, it can detect both the frequency. It is a two-channel receiver and it can detect both the frequencies. For safe landing, the aircraft must align along the center line of the runway at sufficiently far away distance as the last moment sharp turn can lead to disaster. ये जो रनवे का सेंटर लाइन है, काफी पहले से पायलट को एयरक्राफ्ट को इस सेंटर लाइन के अलोंग अलाइन करना है अपने एयरक्राफ्ट को, अदरवाइज वो लास्ट मोमेंट पे पहुंच के देखेगा कि अरे वो तो सेंटर लाइन के अलोंग नहीं है। शार्प टर्न लेने से बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं, पैसेंजर्स को तो होंगी ही, एयरक्राफ्ट को भी शायद हो सकती है। The aircraft is maneuvered along a path in which the receiver continuously detects maxima for both the frequencies. और इसके लिए सेंटर लाइन को डिटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट को लगातार ऐसे पाथ पे मैन्यूवर किया जाता है जिस पर वो लगातार दोनों फ्रीक्वेंसीज का मैक्सिमा डिटेक्ट करता रहे। पहले ये स्टेटमेंट को आप सभी लोग ठीक से कैप्चर कर लीजिए, समझ लीजिए। इस पे बेस चार ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फॉर दिस सिस्टम टू वर्क वेल, द रेशियो ऑफ F1 and F2 must not be the ratio of small integers like 2, 3, 1, 2, etc. The ratio of F1 and F2 must be the ratio of small integers like 1, 2, 2, 3, etc. F1 is equal to F2. The ratio of F1 and F2 must be 1:2। इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं F1 और F2 के रेशियो को लेकर, आपको ये बेसिकली बताना है। एंड जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा अपने बोर्ड को चेंज कर लेना चाहता हूं। ये देखिए, आइए मैं आपको बेसिक बात समझाता हूं। अगर ये दो कोहेरेंट सोर्स हैं, ठीक है, विद जीरो फेज डिफरेंस, तो इनको जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनको जोड़ने वाली इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाएं, पाथ डिफरेंस जीरो है। यहाँ से जो वेव यहाँ पहुंची और यहाँ से जो वेव यहाँ पहुंची, दोनों के पाथ लेंथ में अंतर जीरो है। और पाथ लेंथ में अंतर जीरो अगर है तो कोई सा भी वेव लेंथ हो, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, उसका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर एयरक्राफ्ट यहाँ है तो F1 F2 दोनों फ्रीक्वेंसी की जगह मैं वेवलेंथ बोल रहा हूँ, हाँ, ये दो वेवलेंथ के वेव छोड़ते हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, उसका जो रिसीवर है वो दोनों का मैक्सिमा रिसीव करेगा। एयरक्राफ्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, रिसीवर बोल रहा है कि हाँ दोनों का मैक्सिमा है, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, यही सही रास्ता है। तो एयरक्राफ्ट को पायलट इसी लाइन पे बनाए रहेगा और यही आपके सेंटर लाइन है रनवे का, बिल्कुल ठीक है। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये हो सकती है अगर ये जो दो सोर्स हैं S1 S2,
आप सभी ने पढ़ा होगा कि इनसे कांस्टेंट पाथ डिफरेंस का अगर एक पाथ हम इमेजिन करें तो वो एक हाइपरबोला होता है। जैसे ये एक पाथ हो सकता है जहाँ पे दोनों का पाथ डिफरेंस, दोनों वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो। ये दोनों व्हाइट लाइन की लंबाई में अंतर लैम्डा 1 हो सकता है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 वेवलेंथ के सोर्स है ये। बातचीत में आसानी के लिए ऐसे मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। या लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 मान लो, चलो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 मान लो, कुछ भी मान लो चलेगा। अब यहां लैम्डा 1 वेवलेंथ के वेव जब इस पीले पाथ के ऊपर कहीं भी आते हैं तो पाथ डिफरेंस लैम्डा 1 के इक्वल है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। लेकिन लैम्डा 2 अगर एयरक्राफ्ट यहां पे है तो लैम्डा 1 का तो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन लैम्डा पाथ डिफरेंस कितना है, हम मान रहे हैं कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा 1 है इस पीले कर्व पे। तो लैम्डा 1 के लिए तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, लेकिन पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा 1 है तो वो लैम्डा 2 का आधा है। दैट मीन्स जो दूसरा वेवलेंथ है उसका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, तो एक का तो मैक्सिमम मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा। तो वो जो डिटेक्टर है, रिसीवर है, वो वार्निंग देगा पायलट को कि तुम गलत रास्ते हो, दोनों का मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, तुम थोड़ा इधर उधर भटक के देखो, इस जगह को ढूंढो, ये तो तुम गलत रास्ते पे फंस गए, है कि नहीं। अब देखिए, अगर इन दोनों का रेशियो ऐसा सिंपल रेशियो हो तो ये वार्निंग जो देनी चाहिए वो हो सकता है कि न भी मिले, वार्निंग देने में गलती हो जाए, ऐसा हो सकता है। आप समझिएगा बात को। जैसे मान लो ये, अब इसी कर्व को मान लो, दूसरा कर्व भी हम ड्रॉ कर सकते थे, पर इसी कर्व को मान लो कि पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 है यहाँ पे, तो दूसरे वाले वेवलेंथ का मैक्सिमा तो है ही। लैम्डा 1 के लिए क्या हुआ, ये पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 है विच इज ट्वाइस दी लैम्डा 1, विच मीन्स जो दूसरा वेवलेंथ है उसका 2 टाइम्स ये पाथ डिफरेंस है यहाँ पे। पाथ डिफरेंस तो दोनों व्हाइट लाइन की लंबाई में अंतर है, तो लैम्डा हो पाथ डिफरेंस या 2 लैम्डा हो, कंस्ट्रक्टिव तो होगा ही। तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों का कंस्ट्रक्टिव होने लगेगा। तो वो जो सिस्टम है हमारा रिसीवर सिस्टम, वो पायलट को बोलेगा हाँ तुम सही जा रहे हो, दोनों का मैक्सिमम मिल रहा है, दोनों का मैक्सिमम मिल रहा है। जब पायलट यहाँ पहुंचेगा तब उसे दिखेगा अरे रनवे तो यहाँ है, वो यहाँ कहाँ पहुंच गया। समझ रहे बात को। ये सिंपल रेशियो 1:2, 2:1, 3:1 ऐसा रेशियो होने से इस तरह की गड़बड़ होगी। लेकिन अगर दोनों वेवलेंथ का रेशियो कुछ ऐसा हो, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लेटर से 35/36 है, विच मीन्स 36 टाइम्स लैम्डा 2 इज 35 टाइम्स लैम्डा 1। तो यार वो जगह, वो पॉइंट जहां पे दोनों दोनों ही वेव का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, वो पॉइंट इस सेंट्रल लाइन से काफी दूर होगी। सोच के देखो, एक का 35th मैक्सिमा दूसरे के 36th मैक्सिमा से कंसाइड करेगा, तो वो 35th और 36th मैक्सिमा की जो पोजीशन होगी, ये जो कर्व होगा, वो इस सेंट्रल लाइन से काफी दूर होगी। और हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं पायलट का एयरपोर्ट के पास पहुंच के ही भटकने, उसको कोर्स करेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि उसे उतरना दिल्ली एयरपोर्ट पे है और वो आगरा एयरपोर्ट में ही उधर कोशिश करने लगा सिग्नल डिटेक्ट करने की। वो तो हम उस केस को इग्नोर कर रहे हैं कि वैसा नहीं है, और पायलट एयरपोर्ट के बहुत आसपास है, वो रनवे के भी बहुत आसपास है, बस उसे सेंटर लाइन डिटेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो अगर ये वेवलेंथ का रेशियो बड़े इंटीजर हुए तो ये जो भ्रम की स्थिति है कि दोनों का मैक्सिमम मिल रहा है, ये सेंट्रल लाइन से बहुत दूर में होगा, जो हम मान रहे हैं कि प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो छोटे इंटीजर होने से, छोटे इंटीजर अगर इनके रेशियो हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए, यहां भ्रम की स्थिति होने लगेगी। ऐसे जगहों पे भ्रम, दोनों का मैक्सिमम मिल रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं, ये गड़बड़ कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो रेशियो है इस तरह का बड़ा नंबर हो, ताकि भ्रम होना भी है तो बहुत उधर दूर में हो, जो कि नहीं होगा। मैंने हम बहुत दूर में जाके सोचेंगे ही क्यों कि हमें लैंड करना है, हम इसके आसपास में हैं तो भ्रम नहीं होगा। दोनों का मैक्सिमा ऐसे किसी रास्ते पे नहीं मिलेगा अगर रेशियो ऐसा हो, एक ही जगह मिलेगा दोनों का मैक्सिमा, यहाँ। तो रिसीवर अगर टू 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 बोलता है, मान लो सही रास्ते पे जाने से, तो जब प्लेन ऐसे चलेगा तभी टू 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 बोलेगा, अदरवाइज वो टू 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 नहीं बोलेगा।
और इस तरीके से एयरक्राफ्ट को थोड़ा इधर उधर करके पायलट समझ जाएगा कि वो सही रास्ते पे है कि नहीं। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड बाय।